وادی کشمیر میں ایک اور پولیس جوان ملیٹنٹوں کے حملے میں شہید ہو گیا ہے۔ ملیٹنٹوں نے کلگام اننت ناگ روڈ پر ونپور کے نزدیک ایک پولیس اہلکار پر نزدیک سے گولیاں چلا کر اسے شدید طور پر زخمی کر دیا۔ اگرچہ اسے فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کر دیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ شہید پولیس اہلکار کی پہچان منٹو کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کے فوری بعد پولیس، فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز جائے واردات پر پہنچے اور پورے علاقے کا محاصرہ کر کے مفرور ملیٹنٹوں کی بڑے پیمانے پر تلاش شروع کر دی ہے۔ کشتواڑ پولیس نے 20 سال سے مفرور ایک سابق ملیٹنٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اسٹیشن ماڑواہ میں عبدالغنی عرف ماویہ ساکن رار ماڑواہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک مصدق اطلاع ملنے کے بعد ایس ایچ او پرویز احمد کی قیادت میں پولیس کی ایک ٹیم نے نثار احمد خواجہ کے گھر پر چھاپا مارا اور غنی کو گرفتار کر لیا۔ اسے بعد میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ کورٹ کی ہدایت پر اسے جوڈیشل کسٹڈی میں دیا گیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں کشتواڑ پولیس نے 12 برس سے مفرور سابق ملیٹنٹ نذیر احمد کو بھی گرفتار کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع پلوامہ کے تلنگام علاقے میں ملیٹنٹوں کی جانب سے چھپائے گئے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا۔ ایک تلاشی کارروائی کے دوران یہ ہتھیار ملے۔ فوج کی 55 راشٹریہ رائفلز، پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے مشترکہ طور پر ضلع پلوامہ کے تلنگام علاقے کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے بعد فورسز کی جانب سے علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کی گئی۔ اس دوران گاؤں کے نزدیک ایک پل کے نیچے مشکوک حالت میں پالیتھین کا لفافہ ملا۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم کو لایا گیا۔ ٹیم نے تھیلے سے 4 پستول اور گولیوں کے کچھ راؤنڈ برآمد کیے۔ ان پستولوں میں شاہین نمبر کے 2 اور 2 چینی ساختہ ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس تھانہ پلوامہ میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پہلی بار کسی بی جے پی لیڈر نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ جموں کشمیر کا نیا وزیر اعلیٰ جموں سے ہوگا اور وہ ہندو ہوگا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے نائب صدر صوفی محمد یوسف نے کہا کہ جموں کشمیر کے دونوں خطوں میں مساوات پیدا کرنے کی غرض سے اس بار جموں سے ہندو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اننت ناگ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر منعقدہ ایک تقریب کے دوران نیوز 18 اردو کے سینئر کرسپونڈنٹ مدثر قادری کے ساتھ بات چیت کے دوران صوفی یوسف نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ بی جے پی لیڈران نے جی ایم سی اننت ناگ کا بھی دورہ کیا اور اشیاء خوردنی تقسیم کی۔ تو الیکشن بڑا ضروری ہے اور رویندر رینا جی نے جو بات کہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا چیف منسٹر بنے گا، میں بھی مانتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے بلبوتے پہ یہاں سرکار بنا لے گی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کشمیر کا ہی چیف منسٹر ہونا چاہیے، آج ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جموں کا ہی چیف منسٹر بنے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا چیف منسٹر اور ہندو بنے۔ ہم کشمیر کے لوگوں کو بڑا منظور ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں کو شاباشی ہوگی۔ آپ کا انفرادی خواہش ہے یہ آپ کی کہ یہ پارٹی بھی اس پر سوچ وچار کر رہی ہے؟ نہیں، میں اپنے دل کی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 70 سال کا جنہوں نے راج کیا ہے ان کو ایک توڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ جموں سے ہندو چیف منسٹر بنے اور ہم سب کو منظور ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کچھ کریں گے آگے؟ اپنی ریکمنڈیشنز پارٹی کو بھیجیں گے؟ میں نے پہلے سے ہی کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے ریکمنڈیشن پہلے بھی کی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اگر بھرپور بہمت میں آئے گی اور انشاءاللہ آئے گی بھی، ہمیں پورا یقین ہے، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جموں سے ہمارا ہندو کوئی چیف منسٹر بنے۔ ٹھیک ہے، کشمیر کا کوئی ڈپٹی سی ایم بنے، مسلم ہو، اور یہ پرمپرا جو انہوں نے 70 سال میں اس کو توڑنا ہے۔ تو آج آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ آگے اس بات پر قائم رہیں گے آپ کہ اگر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کورس جو ہے جموں کشمیر کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ویری ہوتا رہتا ہے، تو آگے بھی آپ اس بات پر قائم رہیں گے؟ دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر ایک ہے، جموں کشمیر کے لوگ ایک ہے، چاہے وہ کوئی مسلم ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، ہم سب بھائی ہیں۔ تو مسلم بنے، ہندو بنے، سکھ بنے، کرسچن بنے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بٹ جن لوگوں کو اعتراض تھا پچھلے 70 سال سے، ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ صوفی یوسف چاہتا ہے کہ اس بار ہندو کا چیف منسٹر بنے، ہندو کمیونٹی سے بنے، اور وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی مسلسل مرکزی سرکار کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ مہندر پونچھ میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ 370 ہٹائے جانے کے بعد حالات مزید بدتر ہو گئے ہیں۔ ترقی و تبدیلی کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوا ہے۔ محبوبہ نے کہا کہ ہمارا تحفظ چھینا گیا ہے اور روزگار محفوظ نہیں ہے۔ آنگن واڑی ورکر پریشان ہیں،
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तालिबान से मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुफ्ती ने कहा कि तालिबान पर बात करने के बजाय हमें जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करनी चाहिए। उन्होंने मरकजी वज़रा के दौरे पर तनकीद की और उनके दौरे को आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ बताया। हम समझते हैं कि जो दफ़ा 370 और 35 से हटाने के बाद जो मरकजी सरकार के बुलंद बांग दावे थे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की में, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। जो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं जो कम्युनल जमातों का जो जमावड़ा है वो उस पर भी अटैक करना चाहते हैं, भाई बहनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं, कश्मीरी गुजर करना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है और मैं समझती हूँ कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ भी खौफ है, यहाँ भी डर है कि बात करेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। मिनिस्टर आते हैं, पार्लियामेंटेरियन आते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह लेके जाते हैं दिखाने के लिए देखो यहाँ सब ठीक ठाक है। जो कब्रिस्तान की खामोशी है उनको लगता है ये जो है यहाँ नॉर्मल सी है, मगर जब हम निकलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं या यहाँ तक कि डीडीसी मेंबर वैली में कहीं जाना चाहते हैं तो उनको बोलते हैं हालात ख़राब है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते। तो यहाँ तो आपको प्रोटेस्ट करने भी नहीं देते। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें किसी चीज़ के खिलाफ उसकी बात भी नहीं करने देते हैं। हम तो रोज़ सुनते हैं एनकाउंटर हो गए, हम तो रोज़ सुनते हैं कोई ना कोई पुलिस का हमारा बंदा, हमारा जो चाहे वो सरपंच हो, कोई ना कोई मारा जाता है और रोज़ एनकाउंटर होते हैं, रोज़ मिलिटेंट मारे जाते हैं। तो वो तो कितना कम हुआ है कितना ज़्यादा हुआ तो सिक्योरिटी के लोग बता सकते। जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, यहाँ कैसे लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ किस तरह लोगों का जीना हराम करके रखा हो, यहाँ कितनी बेरोज़गारी है, बेकारी है। हमारे बॉर्डर के इलाकों में लोगों का क्या हाल है, 7 बजे उनका गेट बंद किया जाता है। जो हमारे बालाकोट दूसरे इलाके हैं जहाँ मैं इंशाल्लाह अगली बार आके पूरा टूर करूँगी वहाँ का भी, तो उसके बारे में पूछो। तालिबान तो अफ़गानिस्तान में वो अपना काम वहाँ कर रहे हैं, हमें अपना काम यहाँ करना चाहिए। पुंछ दौरे के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती राजौरी पहुंची। मंजकोट में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मकामी आवाम को रोजगार फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। हुकूमत के पास रोजगार से मुताल्लिक कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स के नाम पर लोगों को उनकी अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। आयुष और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत कश्मीरी माइग्रेंट्स की फलाह बहबूद के लिए पाबंद है। बारामूला में ट्रांजिट रिहाइश कैंप का संग बुनियाद रखते हुए उन्होंने ये बात कही। सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबतकारी को यकीनी बनाने के लिए कई ठोस इक़दाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप की तामीर में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 कनाल अराजी पर बनने वाले इस कैंप में हर फ्लैट की कीमत 12 लाख रुपए होगी। लगभग 337 खानदान रह सकेंगे। जो कश्मीरी माइग्रेंट उनकी फिर से वापस लाकर यहाँ उनको प्रतिष्ठा करने के लिए ट्रांजिट कैंप 40 करोड़ लागत से बनाने का यहाँ कदम उठाया गया है और इसमें कुल मिला के 337 फैमिली के लिए एकोमोडेशन का व्यवस्था रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि वो फिर से वापस आ जाए, यहीं सुख शांति से रहे। तो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से ये बहुत बड़े एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं विशेष रूप से इस जो कदम उठाया गया है इसके लिए देश की परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। कुपवाड़ा जिले के तारतपुरा में गुज़श्ता शब एक पुरस्कार धमाके में एक लड़की हलाक हो गई। हादसे में एक ही कुंबे के 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह धमाका उस वक्त हुआ जब अहल खाना किचन में बैठकर खाना खा रहे थे। बताया जाता है कि अचानक बिजली गुल होने के साथ ही धमाका हुआ। इसके बाद घर के तमाम अफराद खून में लथपथ पड़े थे। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग उस घर की तरफ दौड़ने लगे और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर शबनम नामी लड़की की मौत हो गई। पूरे इलाके में इस वाक़े के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुतासरीन का कहना है कि धमाके का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इलाके का दौरा करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उधर हलाक हुई लड़की की नमाज जनाजा और तदफीन में हजारों लोगों ने शिरकत की।
नम आंखों से उसे सुपुर्द खाक किया गया। मुतासरीन और मकामी आबादी इस वाक़े को लेकर तशवीश में है। दपो कि धमाका से गो कह शाही धमाक गो या कह चीज गो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कह वन प्रेशर कुकर या बे कह चीज अत लोग तुथ फौज आव पुलिस आव तमो बार पे ट्रीटमेंट कोर तमो दोप ये युथ मटीरियल लगा कि ये कह ग्रेनेड कह शल कह चीज तुथ लगभग मीटर हथ आस मे गर दूर रोजान मे बूझ पे गर धमाक दौड़ान दौड़ान अस बूझ अत गो गरस मज क्या और अस वो सारी खूनस में लग पत वनस अकै चीज वन मतलब इस बच्चे गुजरे यह 3rd ईयर पारान या ब्याक बच्चे तमिस वनस दंदन हूँ गोतस मामल मोज या तम हस्पताल तुम वनस कर हस्पताल फोन खुदा सुन गो अस त्रो गो क्या थोड़ा बहुत खर्च अस 10 रुपये रात बत खान रात 8:30 बजे 8:30 बजे गो इन अंदर कमरस में धमाक अस रो बत अत द्राय मगर यह जबरदस्त गरीब लड़का। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां का नाम तब्दील कर दिया गया है। शहीद जवान इम्तियाज अहमद ठोकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखा गया। इस ज़िम्न में कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें फौज, पुलिस और सिविल अहदेदार मौजूद थे। इम्तियाज अहमद फरवरी 2015 में सुपुर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। शहीद फौजी जवान के अहल खाना भी कॉलेज के नए बोर्ड की नकाब कुशाई के मौके पर मौजूद रहे। रियासी जिला अस्पताल कई माह से तनाजात की वजह से सुर्खियों में है। ताज़ा वाक़े में अस्पताल में स्टाफ नर्स और सुपरिंटेंडेंट के दरमियान कहासुनी हुई। इससे नाराज अस्पताल के तमाम नर्स अमला हड़ताल पर चले गए। दिलचस्प बात यह है कि नर्स के साथ सुपरिंटेंडेंट भी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल में तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी के सबब मरीजों की हालत काबिल रहम है। दूर दराज के इलाकों से आए मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अस्पताल अमले की इस हरकत से आवाम में गम व गुस्सा व नाराजगी है। मामूली तनाज़े पर काम छोड़ने की इस रिवायत पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। खड़े रहते हैं, भूखे भी मरते हैं, बच्चे भी रो रहे हैं बाहर में। देखो कोई पूछता ही नहीं है, बोलते हैं डॉक्टर आएगा तो मिलेगी पर्ची। सुबह का आया हूँ, डॉक्टर ही कोई नहीं। 10 हांडियाँ तो मैंने निकाल दी हैं। सुबह के इतने लोग, हर तहसील के लोग आए हैं, हर तहसील के। हॉस्पिटल है, बोलने लगा इधर हो बड़ी बड़ी सहूलतें होगी। सहूलतें क्या, हम इधर आए दरवाजा ही बंद है। हमें 420 का कोई पता नहीं। हम सीधे साधे लोग बोलते हैं मीटिंग चल रही है। हमें नहीं पता पार्टी चल रही है या मीटिंग चल रही है। कहीं खाने पीने की पार्टी होती है, मिठाइयाँ खाते हैं, जहाँ से कहीं फंड मिलती है, हमें कोई पता नहीं। हम सीधे साधे लोग हैं। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब को भी ये कहना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी अस्पताल में हमें डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए और गरीब लोगों को बचाया जाए। अभी बोलते हैं कोरोना के टीके, ये है वो। कौन है कोरोना? क्या कोरोना है? ऐसे बुखार होता है, उनको भी नहीं देखते ना, कोरोना वाले को कौन। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर और ख़ास तौर पर श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफे पर इंतजामिया तशवीश का इजहार कर रही है। कोविड SOPs पर सख्ती से अमल कराने की बातें की जा रही है। इसके बावजूद ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। न ही इंतजामिया अपने बड़े प्रोग्रामों में कोविड SOPs पर अमल कर रही है और न ही लोगों को इसकी कोई फिक्र है। श्रीनगर में अक्सर लोग एक मरतबा फिर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत मजीद खराब है। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे से जब कई लोगों ने से मास्क न पहनने की वजह जानने की कोशिश की तो वो बहानेबाजी से काम लेते नजर आए। है सर, मैं थोड़ा यहाँ बात कर रहा था मैडम के साथ, तो इसलिए मास्क आपकी वजह से आपके साथ बात करने पे थोड़ा मास्क। मेरी वजह से नहीं, आप बगैर मास्क उधर से आ गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मास्क चलता है, ठीक है। काहे नहीं पहन रहे? अब जा रहे हैं वहाँ पर, तो हम लोग जल्दी निकले पूजा करके कि मेला छूट जाए। वो वहाँ पर शंकराचार्य बिस्बोर में छूट गया। लगा इंशाल्लाह रहमान योर वस्ती बुझ पानस करा चल सक बुझ पानस करा चल सक। हाँ जी, बाजार में ही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं तो हमेशा लगा के रखता हूँ। अभी शायद गिर गया होगा थोड़ा, तो इसीलिए। हाँ, जो इस तरह जिनका मास्क गिरता है उनसे क्या कहेंगे? मैं हर किसी से यही कहूँगा कि हर कोई मास्क लगा के रखे, सैनिटाइज हमेशा करते रहे। लॉकडाउन क्यों हुआ? कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन। आपने सुना यहाँ केस और बढ़ रहे हैं? बढ़ रहा है केस। मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। आपने मास्क भी नहीं पहना, आपको कितनी परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस अफवाहें हो रही है। कोविड है ना, आपको पता है? कोविड तो है। आपकी कितनी पढ़ाई छूट है? बहुत सारी नुकसान हुआ, 2 सेमेस्टर मेरा लास्ट हो गया। सर मैं कोविड पेशेंट रह चुका हूँ इससे पहले भी। अच्छा, फिर भी आपने मास्क नहीं पहना? सर अब थोड़ा कम डर लगता है कोरोना से।
क्योंकि मैं इस टाइम से गुजर चुका हूँ। लेकिन फिर हो सकता है, ये आपको पता है? मे भी हो सकता है सर। कहते हैं कोविड के म्यूटेंट्स आ रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना, वो रूप बदल के आता है, और कई जिनको पहले भी हुआ है कोविड, आप जैसे लोगों को तो ज़्यादा ध्यान से रहना चाहिए। जी वो तो सही बात है सर। फिर ये तो गलत बात है। अब सर गलत बात तो है। मास्क नहीं पहनते। नहीं सर, अंदर तो लगाए, तो बाहर से तो नहीं लगाए। बाहर तो ज़्यादा खतरा है, और तो दम हो गया सर। आप देखें, कहीं मास्क नहीं, कहीं दूरी नहीं, गाड़ियों का इंतज़ाम देखिए, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखिए कहीं दूरी है क्या? यहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि हम यहाँ पे चालान काटते हैं, लोगों को वो हिदायत भी दे रहे हैं दूरी बनाए रखने की, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है जिसको बदलने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, ये हमें भी बदलना होगा, क्योंकि सेहत हमारी है, जान हमारी है, और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। वकला और अदालती अमले को ही हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इमारतों में दाखिले की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने हुक्म दिया कि कोरोना के दोनों टीके ले चुके अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाए। कई रोज से वादी में कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी और केसेस की बढ़ती तादाद पर श्रीनगर इंतजामिया ने तशवीश का इजहार किया था। इंतजामिया ने आवाम को कोरोना एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर खबरदार किया था। अगरचे हाई कोर्ट में दाखिले से कबल कोविड चेकिंग का एहतमाम किया गया, लेकिन बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर लोग बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। मशहूर शायर, नगमनिगार और फिल्मसाज गुलजार ने अपनी मुंतखब शायरी बउनवान ए पोएम ए डे में बृजनाथ बेताब की शायरी भी शामिल की है। यह किताब हार्पर कोलिंस ने शाये की है। 968 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब में गुलजार ने हिंदुस्तान की 34 ज़बानों में 279 शायरों की 365 नज़मों का इंतखाब और तर्जुमा खुद किया है। इस किताब को हतमी शक्ल देने में 9 साल का अरसा लगा। गुलजार ने बेताब की शायरी की तारीफ करते हुए कहा कि शायरी मुआशरे का आईना है जो लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बसीरत फराहम करती है। गुलजार का मानना है कि तनों के बावजूद हम सब सकाफती और सियासी तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों, बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया कि वो शायरी पढ़ें और समझें। बृजनाथ बेताब ने गुलजार और पब्लिशर का इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मेरी 2 नज़मों को एंथोलॉजी में शामिल करने से इन लोगों को तक़वियत मिली जो दहशतगर्दी की वजह से मुतासर हैं। ये बृजनाथ बेताब हैं, शायर हैं वहाँ कश्मीर के, और मतलब जम्मू कश्मीर कहा जाए उस दौर में कही हुई है जब ये जो अलग हो गए हिस्से बने गए हैं, जब ये नहीं अभी या हो रहे थे या होने, ये दौर शुरू हो चुका था कहीं ना कहीं, लेकिन ये बेचैनी उसमें नजर आती है। When he says के क्यारियों में फूलों की एक साइन बोर्ड था, अब सिंबॉलिकली वो बात करते हैं, क्यारियों में फूलों की एक साइन बोर्ड था, एक तनबीह थी, there was a warning, एक तनबीह थी, फूल तोड़ना मना है यहाँ। एक दिन किसी तरह एक तूफान आन पड़ा, बाग में आ ही गया। ब्यूटीफुल। और उसके साथ ही हिस्सा है एक और है, उन्हीं की है, साया। मेरा साया मेरे कद से बड़ा है, मेरा साया मेरे कद से बड़ा है, मेरा कद है भी कोई क्या? बड़ा रेलेवेंट सवाल है। जिस तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव होता है, सलूक होता है, मेरा साया मेरे कद से बड़ा है, मेरा कद है भी कोई क्या? मैं खुद से पूछता हूँ, कोई कद होता है परदेसियों का, माइग्रेंट्स का? ये शक है। मैं गुलजार साहब का और इस किताब के पब्लिशर का बहुत ममनू हूँ। एक खुशी तो ज़रूर है कि भारत के, हमारे मुल्क के और मुल्क से बाहर के करीब 280 शुरा का इसमें कलाम है, और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरी भी
2 नज़में इसमें शामिल हैं, लेकिन इसके साथ एक एहसास होता है ज़िम्मेदारी का। वो यूँ कि जब इतने बड़े जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं गुलजार साहब, अगर उनको मेरी कोई तख्लीक पसंद आई तो जाहिर है मुझे बहुत ज़िम्मेदारी से आगे काम करना होगा। श्रीनगर के लाल मंडी में मुनक्किदा एक ताज़ियती मजलिस के दौरान जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर के साबिक सेक्रेटरी मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये ताज़ियती मजलिस कल्चरल एकेडमी और कश्मीर म्यूजिक क्लब ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद की थी। मारूफ फनकारों बशमूल मुसन्निफीन, गुलकारों, अदाकारों और दीगर दानिशवरों ने अजीज हाजनी की जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डाली। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी और कुरान ख़्वानी का भी इनेकाद किया गया। NC कश्मीर के सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। सभी जो आर्टिस्ट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जहाँ उनके साथी दोस्त हैं, उनको आके अपना खराज अक़ीदत पेश करेंगे। सब ने 2-2 मिनट जैसे आपने देखा बोला, और उनके साथ जो उनकी कुर्बत रही है, उनकी वाबस्तगी रही है, सब ने अपने तजुर्बे बयान किए। इससे पता चलता है कि अजीज हाजी साहब ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी ज़ुबान को आगे ले जाने के लिए, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। यहाँ की जो फनकार बरादरी है, आर्ट और कल्चर के साथ जो जुड़े हुए ख़ास तौर से लोग हैं, वो यहाँ आएँ और हाजनी साहब को अपने अंदाज से याद करें, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे टोटल कल्चरल मंजरनामे के हवाले से। मेरी तरफ से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हाजनी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, करवर उन्हें जन्नत नसीब दे, और उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, सबको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मरकजी हुकूमत के अवामी आउटरीच प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम, लेबर और रोजगार रामेश्वर तेली ने भद्रवाह वैली का दौरा किया। मुख्तलिफ अवामी वफूद, पंचायत राज के मेंबरान और सियासी लीडरान से मुलाकात की। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से भद्रवाह कैंपस के ललदेद ऑडिटोरियम में मुनक्किद तकरीब में हिस्सा लिया। तेली ने कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में 12,30,000 गैस कनेक्शन फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्कीम का दूसरा हिस्सा लॉन्च किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी करने वाले डोडा के 75 अफराद को तहनीत पेश की गई। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी मंत्री यहाँ आते हैं वो अपना कुछ ना कुछ स्कीम यहाँ लागू करने की कोशिश करें। उसी तरह से मैं 2 मंत्रालय मेरा पास है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो आप लोग मालूम है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कैसे पंजाब से यहाँ पाइपलाइन गैस ला सकते हैं क्या। इसका ऊपर 2-3 बार हम लोग की बैठक हो गई है और हम लोग आशा रखते हैं जरूर यहाँ इस तरह से काम हो। अपनी पार्टी के सूबाई सदर अल्ताफ अहमद मलिक ने मरकजी वज़रा के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि वज़रा का दौरा महज जम्मू कश्मीर में घूमना फिरना न हो। उन्होंने कहा कि यह दौरा जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए नतीजा खेज और तरक्की का ज़ामिन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़रा के दौरे से आवाम बेहद पुरउम्मीद है। अहमद मलिक ने रियासत का दर्जा बहाल करने और जल्द इंतखाबात कराने की मांग की। असेंबली चुनाव कराए जाए, क्योंकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात ब्यूरोक्रेटिक रूल में बहुत ही कम होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक रूल में आम लोगों की जो रसाई होती है वो बहुत कम होती है। बजाय इसके अगर यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो उससे ज़्यादा तवक्कात होते हैं यहाँ के लोगों के, और यहाँ के लोगों के जो मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके असेंबली चुनाव कराए जाए। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। गोल मार्केट गांधीनगर में मुनक्किदा तकरीब का इफ्तिताह बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने किया। कई सीनियर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। मकामी फनकारों ने बीजेपी सरकार के कामों को उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिंदगी और उनके काम पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। कई सरकारी महकमों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की जानकारी फराहम की। काफ़ी तादाद में लोग इस तकरीब में शरीक हुए। रविंद्र गुप्ता, जुगल किशोर, प्रिया सेठी और अशोक कौल भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लिए और समाज के लिए ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो हैं वो उठाए हैं, और पिछड़ा हुआ जो समाज था विशेष तौर पर उनके लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है, देश को ताकतवर बनाया है,
और देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, ऐसे भी उन्होंने कदम उठाए हैं। और विशेष तौर पर विश्व में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है और हम सब देखते हैं कि निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश की सेवा की है। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में नए मुकाम छुए हैं। मोदी साहब दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। मैं माँ वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ वैष्णो देवी जी की कृपा हमेशा मोदी साहब पर बनी रहे और इसी प्रकार मोदी साहब विश्व का मार्गदर्शन करते रहे, गरीब मजदूर किसान लोगों की सेवा करते रहे और भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्व गुरु बने। वादी कश्मीर में भी बीजेपी कारकुनों और लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म का जन्मदिन मनाया। श्रीनगर में पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी अहदेदारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए 25,000 पोस्टल कार्ड भेजे गए। पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शन द्राबी समेत कई सीनियर लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए फख्र का मकाम है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिला है। हमें बहुत सारी परेशानियां कोरोना के टाइम पे देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने ऐसी स्कीम शुरू करी जिसके ज़रिए से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम आज ये पोस्ट कार्ड के ज़रिए जो ये हमारी विशेष है, और आपने देखा कि पोस्ट कार्ड का सिस्टम बंद हो गया था और मोदी जी का देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा नज़रिया है कि उन्होंने पोस्ट कार्ड्स के ज़रिए ये सिस्टम फिर से शुरू करा। वो किसी भी चीज़ को मरने नहीं देते हैं, वो किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने चाहा कि पोस्टल सर्विसेज जो बंद हो चुकी हैं उसके ज़रिए से भी मोदी जी ने ये हम उनको पैगाम भेजना चाहते हैं ताकि ये फिर से ये रिवाज शुरू हो जाए। ये पोस्टल कार्ड्स का मकसद है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी हज़ारों साल जिए और एज प्रधानमंत्री वो काम करते रहे देश में, क्योंकि हम कश्मीरी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उनका। वो इस तरह से कि जो एक सिलसिला चला आ रहा था पथराव का, हड़ताल का, काले दी जा रही थी, सारा कुछ वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। कोई यहाँ भूख से नहीं मर रहा है, जिसको जो मर्जी वो कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और इंशाल्लाह आइंदा भी उनके मतलब रहनुमाई में हमारा जो जम्मू कश्मीर, खासकर देश तो है ही, हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की बुलंदी को छुएगा। लेह में बीजेपी पार्टी दफ्तर पर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पूजा का एहतमाम किया गया और केक काटकर जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनान ने पीएम मोदी की तवील उम्र के लिए दुआ की। लेह का जो है हिस्टोरिकल लेह पैलेस पे आयोजन किया था और वहाँ से जो है उनका पूजा करके जो है वहाँ पे जो है उनके लंबे उम्र का जो है दुआएं सभी ने मांगा और उनको जो है और भी स्ट्रेंथ देने के लिए जो है सभी ने दुआएं मांगा। और उसके बाद जो है पार्टी ऑफिस में अभी बहुत बड़े स्तर पे यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। बाहर आप अभी सभी सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात पेश की। अपनी रिहायशगाह पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी का विजन तारीखी है और सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं उनकी वालिदा को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने इस वफादार और बहादुर बेटे को जन्म दिया। पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी लीडरान गरीब आवाम तक पहुंचे। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर सीनियर बीजेपी लीडर दरख्शन द्राबी ने श्रीनगर के लेबर कॉलोनी में गरीबों में फूड किट्स तकसीम किया। द्राबी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मंत्री ने ये विकल्प लिया है कि हमारे देश में आगे बढ़ने का जो उठान है वो कोरोना में हमने दिखाया। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो नहीं कर पाई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया और हर एक को वैक्सीन भी लगाया। आज के दिन हम विकल्प करते हैं कि हम देश में अब नई उन्नति, नए डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पिछली बार भी मैं हमारे इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इन नौजवानों में कुछ खाना पीना, ये दिल भरी एक की हमारे साथ अच्छा रसूख किया बातचीत की, इसलिए बात हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तोहफा लाने वालों के भी शुक्रगुजार हैं, तो हमको याद करते हैं। मंगहम तराल में आज यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बेरोजगारी का दिन मनाया। इस मौके पर पार्टी के लीडर मनप्रीत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौकरियों के हवाले से मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया है। एक दस्तखती मुहिम भी चलाई गई।
भाजपा सरकार में आई है, इन्होंने यही वादा करके वोट लिए थे लोगों से कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर 2 करोड़ तो छोड़िए, यहाँ पे 2000 नौकरियां देखना भी बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। और इसी को हाईलाइट करने के लिए, इस फेलियर को गवर्नमेंट के हाईलाइट करने के लिए हम आज यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में भारतीय युवा कांग्रेस जो है इसको नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की तरह मना रही है। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल के साथ गुज़श्ता रोज़ उनके दफ्तर में मार्शल आर्ट के एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की मुबीना बदसलूकी की 400 मजम्मत की जा रही है। एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल से सख्त कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने फर्जी दावे करने वालों और फर्जी एसोसिएशंस की शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक ही मुद्दा था कि इसको ड्रामा करना था एंड शी इज नॉट एलिजिबल टू मीट द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, क्योंकि जब जोगेंद्र जी ने इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास भेजा था, हु इज द डीलिंग ऑफिसर, इसका तो रोल ही नहीं बनता था सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से मिलने के लिए, उसके बात करने के लिए। इसकी गहरी एक साजिश थी, इसके पीछे कुछ लोग हैं जिनको जितने भी एलिमेंट्स है उनको सामने लाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो इनके पीछे है। आजकल कोई भी बच्चा भी आता है, सबसे पहले वो स्टेडियम्स में जाता है, वो डायरेक्ट सेक्रेटरीज के पास नहीं पहुंचते हैं कि हमने वेरिफिकेशन कराना है। सीधी सी बात है, यहाँ पर एक लेटर होती है, पहले या तो कोचेस के पास जाएंगे या मैनेजर्स के पास जाएंगे, नहीं तो वो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के पास जाएंगे, वहाँ से रास्ता दिखाएंगे। ये डायरेक्टली सेक्रेटरी के पास कैसे पहुंच गई ये लड़की? अगर वो जेन्युइन होती शायद मैं उसको जानती, या मैं क्या स्पोर्ट्स काउंसिल में कोई भी इंसान उसको जानता या पहचानता। मैं 7 साल की उम्र से अपनी गेम खेल रही हूँ, मैंने आज तक कभी भी उसके बारे में नहीं सुना, ना ही मैंने कभी स्पोर्ट्स काउंसिल में देखा। हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के हर एक स्पोर्ट्स के सीनियर एथलीट्स को जानते हैं, but I've never heard her name and I don't think this was right. This is not acceptable at all and we cannot. बीएमओ बोनियार की सरबराही में महकमा सेहत की एक टीम फौज की मदद से वैक्सीनेशन मुहिम में लगी है। बोनियार सेक्टर में एलओसी के करीब ये टीम कैंप की हुई है। तोरना, तिलपथरी, मोरनी, चौटाली, गगरहिल जैसे इलाकों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। टीम ने 303 अफराद को वैक्सीन लगाया। इससे हल्का मैदान में 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों के 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई है। 45 बरस से ऊपर के लोगों को दूसरा डोज देने का हदफ भी 100% मुकम्मल हुआ। यह जम्मू कश्मीर का पहला सरहदी इलाका है जहां 18 बरस से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। जो डोज है इसका वैक्सीन का, ये 18 साल से ऊपर का जितना था वो हो गया कंप्लीट। अब 18 साल वाले जो हैं वो भी 50% से इजाफा हो रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए। अब यहाँ मौके पर बीएमओ साहब भी आए हैं। यहाँ जितना भी होता है सहूलियात फौजी हमारे लिए, यहाँ बीएमओ साहब भी यहाँ पहुँचे हैं मौके पर। अभी उनको बुला के, यहाँ दूर दराज इलाका है, बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ से नीचे जाने का बड़ी मुश्किल है। हम आज की डेट में हमने 100% अचीव किया, मोर देन 18 और प्लस सेकंड डोज ऑफ 45, जो कि बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हाई टेरेन्स पर और हाई आल्टीट्यूड पर ये लोग बहकों में हैं। और दिस इज़ द लास्ट बहक ऑफ ब्लॉक बोनियार और आज की डेट में हमने ये कवर किया। वी आर वेरी हैप्पी और इस वक्त मैं सब अपने वैक्सीनेटर्स टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर अपना अच्छा योगदान दिया। जिला बडगाम में कोरोना मुखालिफ कोविड वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा और डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जिला भर में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से बेदार करने का काम करेगी। मिर्जा ने लोगों से अपील की है कि वो सामने आकर खुद का टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन हो रही है, डेथ रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और कहीं कोई डेथ हो भी रही है। कल ट्वीट किया था किसी ने श्रीनगर से कि 35 ईयर ओल्ड किसी पेशेंट की डेथ हुई है, उसको एक डोज भी नहीं लगी हुई थी। तो लोगों से मेरी अपील होगी कि वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो साइट्स है हमारी वो करीबन 150 के करीब हैं। थोड़ी बहुत कहीं हेजिटेंसी लोगों में नज़र आ रही है कुछ जगहों पर, तो मेरी उनसे अपील होगी वो सामने आके वैक्सीन करवाएं। बिरवा के आरवा में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लोगों का कहना है कि आरवा में कई रोज से तेंदुए ने दहशत मचाई थी। लोग अपने घरों में सहम कर रह गए थे।
लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी। इसके बाद मुतल्लिका महकमे की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। उधर टंगमर के काजीपुरा में तेंदुए ने एक 25 साल के नौजवान पर हमला किया। उसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसे टंगमर अस्पताल श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेह में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुनासिबत से पोषण माह प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हाई स्कूल थिकसाई में एक रोज़ा इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया। इसमें 10 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। बेहतर कारकर्दगी करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। इन्होंने रखा जो स्कूल मैनेजमेंट है उन्होंने रखा था, तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये जो न्यूट्रिशन का जो इशू है उसको मासेस तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। इस महीने में लोगों को ये आगाह किया जाता है कि बच्चों के द्वारा घरों में ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि पोषण और कुपोषण के बारे में जानकारी घर घर तक पहुंचे। बारामूला के शहरी इलाके में करियर काउंसलिंग और दिमागी सेहत पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसका मकसद माशरे को जहनी सेहत और तनाव से मुताल्लिक दीगर मसाइल से आगाह करना था। माहिरीन ने नौजवानों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के जहनी दबाव या इससे मुताल्लिक मसाइल का सामना होने पर हमेशा डॉक्टरों से मशवरा लें। 2 रोज़ा ज़ंस्कार फेस्टिवल के अख्ताम के बाद CEC फिरोज अहमद खान और DC करगिल संतोष सुखदेव ने गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने साइंस लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया और तमाम शोबों का जायजा लिया। तलबा ने CEC और DC से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। कस्बा पामपुर में दरिया जहलम के किनारों पर मौजूद भांग की वजह से यहाँ मुकीम आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक किसी भी महकमे ने इसको तबाह नहीं किया। इसकी वजह से नौजवानों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने तहसील इंतजामिया और म्यूनिसिपल हुक्काम से कार्रवाई करने की मांग की। वजह से हमारी पूरी जो नौजवान पौध है वो ख़त्म हो रही है। हमने 12 आला हुकाम से तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की और म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर से हमने गुजारिश की कि यहाँ पे एक ड्राइव चलाई जाए। सिविल सोसाइटी भी आपके साथ शाना बशाना काम करेगी ताकि हमें इससे निजात मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। जो बंग इसमें डिस्ट्रॉय की जाए, एक तो हमारे जो नौजवान लोग हैं, यूथ है, वो इस वबा से जो है बचे रहेंगे, और दूसरा ये है कि इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे मामले भी हो जाते हैं, क्राइम हो जाता है। जो बंग के नशे में लोग चोरियां चकारियां करते हैं, उससे भी हमें यहाँ निजात मिलेगी।